Hello students, myself Sapna Kashyap and today I'm going to teach you another topic of commercial bank. Students, as you all know, in last topic we have done with the topic that is the introduction of banking. Under introduction of banking, I have already taught you what is a commercial bank and what is a banking system. Banks are of two types as I have told you yesterday. One is a commercial bank and other are the central bank. So we have done with the functions of commercial bank which we done yesterday, all the main and the secondary functions of commercial bank. But today I am going to teach you a very important topic according to the board point of view, which is the credit creation and money creation by the commercial bank. Students, you all should know this is the main function of commercial bank. And this is the thing through which commercial bank earn income and the profit. So let's start with the topic money creation and it is also known as money creation as well as the credit creation. So these are the heading which I have written on board. If a 6-marker question comes, what is the credit creation or money creation? Explain the process of money creation. If this question is asked for the 6 marks or it is a 6-marker question, then we need to cover all these headings under one answer. First of all, we will be giving the introduction of what is money creation and credit creation, then assumptions of money creation, and then we will be explaining the process of this. Under process, we are making one table, then the explanation of that table, and after this fourth will be money multiplier. So let's start from the first topic, which is introduction. So in introduction we are going to write that money creation and credit creation ये एक बहुत ही important feature है commercial banks का. Commercial banks लोगों को पैसा लोन पे देते हैं, वो उनके डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन अपने पास रख के और बाकी पोर्शन का किसी और को लोन क्रिएट करते हैं और इसे हम मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम इसे स्टार्ट करें, इस प्रोसेस को समझना स्टार्ट करें, हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं. एजम्पशंस मीन हम ये मान के चल रहे हैं दैट ऑल द बैंकिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूनिट, राइट. फर्स्ट एजम्पशन, अंडर दिस वी विल बी राइटिंग फर्स्ट एजम्पशन दैट ऑल banks are single unit, or we can say banking is a single unit, right. Second assumption we are taking that no bank is giving 100% of your deposit as a credit to other. कोई भी बैंक अपने पैसे का 100% क्रेडिट नहीं देता, वो उसका एक प्रपोर्शन अपने पास रखता है और बाकी वो लोन प्रोवाइड करता है. थर्ड एजम्पशन हम यही मान के चलते हैं कि लेट हमारा एक प्राइमरी डिपॉजिट है, एक होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट और वी कॉल इट इनिशियल डिपॉजिट. लेट हमने ये एज्यूम कर लिया कि प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, ₹1000. एक कमर्शियल बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट कितना है, ₹1000. और LRR, liquid reserve legal reserve ratio, means that minimum reserve ratio which every bank keeps with itself. तो ये which is decided by RBI, जैसे RBI डिसाइड करता है, कोई भी कमर्शियल बैंक LRR, CRR या SLR को खुद से डिसाइड नहीं करता. तो हमने मान लिया LRR लेट 10% है. तो अब हम इस पूरी प्रोसेस को इन 4 एजम्पशंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे. पहली एजम्पशन हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी टोटल एक बैंकिंग सिस्टम है वो एक सिंगल यूनिट है. सेकंड, कि बैंक्स जो हैं वो कभी भी अपने अकाउंट का 100% लोन नहीं देते. थर्ड, इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट्स बैंक के पास कितने हैं, ₹1000. Then next fourth is that LRR here is 10%. तो ये चीजें हमने एज्यूम कर ली यहाँ और इसके बेसिस पे हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे. अब इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक टेबल बनाएंगे
और उस टेबल की हेल्प से इसे एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टेबल। स्टूडेंट्स, लेट्स मेक अ चेंजेस। लाइक मैंने अभी आपको बोला कि हमने इनिशियल डिपॉजिट्स ले लिए 1000 रुपीज़, और LRR इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10%, लेट्स आई हैव टेकन 20% फॉर द सिंप्लिसिटी, बिकॉज 20% से कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 20%। तो दो चीज़ें जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, वन, इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं 1000, दूसरा LRR 20%। LRR 20% का मतलब होता है कि बैंक जितना भी अमाउंट का डिपॉजिट उसके पास है उसका 20% वो अपने पास रखेगा, और बाकी जो अमाउंट बचेगा उसका वो क्रेडिट क्रिएट करेगा या फिर वो लोन देगा। गॉट इट? और दूसरी चीज हमें ये समझना है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दे ऑल आर रूटेड थ्रू द बैंक। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। ये चीज आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। हर पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू हो रही है। ओनली देन वी कैन से इट इज़ रूटेड थ्रू द बैंक। अगर हम कैश पेमेंट करेंगे तो उस केस में ये वाला प्रॉपर प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं होगा। सो सबसे पहले लेट कोई ए पर्सन है, उसने बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए। बैंक ने उसके 1000 रुपीज़ में से उसका 20%, मतलब कि 1000 का 20% 200 रुपीज़ अपने पास रख लिया, और रिमेनिंग अमाउंट, सो 1000 माइनस 200, रिमेनिंग अमाउंट 800 का उसने लोन दे दिया। गॉट इट? सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। एक पर्सन ए ने बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए। बैंक का LRR 20% है। बैंक ने उसका 20% अपने पास रखा। 1000 का 20% मतलब बैंक ने 200 रुपीज़ अपने पास रखे और 800 का किसी बी पर्सन को लोन दे दिया। अब जिस भी पर्सन को लोन दिया उसने किसी और पर्सन की पेमेंट करनी है, उसे कुछ खरीदना है। अब पेमेंट तो चेक के थ्रू होगी, तो उसने सी पर्सन के नाम पे एक चेक इशू किया 800 रुपीज़ का। अब बिकॉज देयर इज ओनली वन बैंक इन द इकोनॉमी, तो वो 800 का चेक फिर से बैंक के पास आ गया। बैंक के पास नए 800 रुपीज़ आ गए। बैंक इसका भी 20% ऑफ 800 इज 160 रुपीज़। बैंक विल कीप इट विद इटसेल्फ, अपने पास रखेगा, और बचा हुआ अमाउंट 800 माइनस 160 मतलब 640 रुपीज़ का बैंक लोन दे देगा किसी और पर्सन को। अब जिस किसी के पास भी ये 640 रुपीज़ का लोन आया, वो भी इसे वापस बैंक में ही डलवाएगा, बिकॉज कैश ट्रांजैक्शंस तो हो नहीं रही हैं, सारी पेमेंट चेक के थ्रू हो रही हैं। तो 640 रुपीज़ फिर से बैंक के पास आ गए। बैंक ने इसका फिर से 20% अपने पास रखा, राइट? बैंक इसका 20% 128 रुपीज़ अपने पास रखेगा, और 640 माइनस 128 512 रुपीज़ का फिर से एक लोन क्रिएट करेगा। स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस चलती रहेगी। हमें एग्ज़ाम में इसको बिल्कुल ज़ीरो तक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहीं तक शो करेंगे। वी कैन जस्ट कीप हियर डैश 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 and we can write, and this process will go on till LRR is 0. So we can write this process will go on till LRR is equal to 0. जब तक ये कम होके LRR 0 नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब लास्ट में जब मैं इसे डिपॉजिट को ऐड करूंगी तो बैंक के पास टोटल जो डिपॉजिट्स बैंक के पास होंगे वो होंगे 5000 रुपीज़, एंड LRR 1000 और लोन उसने क्रिएट किया 4000 का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ मुझे 5000, 6000, 10,000, 12,000 कितना लिखना है? बिकॉज आपने तो पूरी कैलकुलेशन की नहीं। यू हैव लीव इट इन बिटवीन, आपने बीच में ही इसकी फर्स्ट 3 डिजिट को कैलकुलेट किया और छोड़ दिया। तो उसके लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए और उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे, मनी मल्टीप्लायर।
मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR, 1 अपॉन LRR। तो 1 अपॉन LRR, इसका मतलब LRR कितना है 20%। अब ये परसेंट यहाँ से हटेगा तो ऊपर 100 आ गया, 0 से 0 कट हो गया, 10 से 2, इसका मतलब मेरा मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया 5। सो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल डिपॉजिट्स थे उसके 5 टाइम्स बैंक मनी क्रिएट करेगा। मतलब कि 10 इंटू 5, 1000 इंटू 5, बैंक क्रिएट करेगा 5000। सो दिस 5 मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू ₹5000। सो स्टूडेंट्स लिसन अगेन, फिर से सुनो एक बार। हम टॉपिक कर रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी क्रिएशन। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद एजम्पशंस लिखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एजम्पशंस में हम लिखेंगे ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू द बैंक फर्स्ट। सेकेंड, बैंक नोज फ्रॉम देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस दैट ऑल द पीपल नेवर विड्रॉ द 100% ऑफ देयर डिपॉजिट। थर्ड एजम्पशन हम मान के चल रहे हैं कि इनिशियल डिपॉजिट कितने हैं हमारे पास 1000 रुपीज़, और LRR जो RBI ने डिसाइड किया है लेट वो 20% है। अब उसे लेके हम ये एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल में ये कॉलम्स होने ज़रूरी हैं, राउंड, डिपॉजिट, LRR एंड लोन। ये टोटल मेरे पास 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, और इन 4 कॉलम्स की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिख के दिया था कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोसेस में। तो एक्सप्लेनेशन में कोई एज सच कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, इसी टेबल को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट वही आ जाएगा, लेट इनिशियल डिपॉजिट इज़ 1000 और LRR 20% है, तो बैंक विल कीप 200 रुपीज़ विद इट सेल्फ एंड गिव लोन ऑफ 800। सेकेंड पॉइंट लिख दोगे, नाउ दैट 800 विल अगेन कम टू द बैंक, अगेन बैंक विल कीप 20% ऑफ 800 मतलब 160 एंड गिव लोन ऑफ 640, and this process will go on. When you are attempting this question, जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, आपको ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखना और एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन LRR। अगर मैं यहाँ LRR 20% ना लेके सिर्फ 10% लेती तो इट्स वेरी ऑब्वियस मेरा टोटल यहाँ पर कितना आता 10,000, राइट। सो लेट्स आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर मैं इसको इरेज करती हूँ और एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, एक 1 मार्कर अगर एग्जाम में आता है, एंड इन दैट 1 मार्कर दे आर गिविंग दैट प्राइमरी डिपॉजिट with the bank or commercial bank is given as ₹5,000 and LRR is 10%. Calculate the money multiplier or final value after giving loan. So we'll put the formula 1 upon LRR is equal to money multiplier. So 1 upon 10%, or I can write 1 upon 10% हटा के 100, इट मीन्स 10। तो कितना डिपॉजिट होगा बैंक के पास, फाइनल डिपॉजिट कितना होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू मनी मल्टीप्लायर द फाइनल वैल्यू विल बी 10 इंटू प्राइमरी डिपॉजिट, इट मीन्स 10 इंटू 5000, ये हो जाएगा 50,000। तो यहाँ पर ये फाइनल वैल्यू होगी 10, जो 10 यहाँ से कैलकुलेट किया इनटू प्राइमरी डिपॉजिट, सो 10 इंटू 5000 इट विल बी 50,000। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द सेंट्रल बैंक, which is very important. We will be discussing the central bank, the functions of central bank and other functions performed by the central bank. Okay, thanks a lot students. Bye.